So a very good afternoon to everyone who are present here offline as well as online. First of all, the Department of Sociology is grateful to you for accepted our invitation, sir. You are most welcome to this important, webinar on the important topic that is rural social structure and welfare in India. Before starting, this particular activity, this particular webinar, I request our students, please, perform this Saraswati Vandana. It's our sacred tradition to worship our goddess Saraswati before any important event. So let's dedicate a prayer to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. And you can start. Start. अपनी दया बरसा देना, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, बीना वादिनी ज्ञान की देवी, तू सारे संगीत सवारी, रागों में आवाज तेरा, सारों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में बात तेरा, सारे सुरों में बात तेरा, सारे सुरों में बात तेरा, राग रागिनी मेरी सरगम, राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, इनको और खिला देना, मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, बीना वादिनी ज्ञान की देवी, बीना वादिनी ज्ञान की देवी, बीना वादिनी ज्ञान की देवी. Thank you so much. Thank you, wonderful. So, अब मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि रूरल सोशियोलॉजी को हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी में बताना चाहूंगा इससे आगे. जो हमारे स्पीकर है आज के, प्रोफेसर बूटा सिंह, ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इग्नो न्यू दिल्ली में, ये वहाँ पे प्रोफेसर है और एक यंग स्कॉलर है जिन्होंने जो रूरल सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल सोशल चेंज, इन सभी विषयों में ये अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे लिटरेचर ये पब्लिश भी कर रहे हैं, ताकि आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो डिफरेंट रीजन में पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके और साथ में उनको एक न्यू डायमेंशन मिल सके. मैं इसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो रूरल सोशियोलॉजी बेसिकली है वो एक इमर्जिंग फील्ड है, क्योंकि हमारा जो पूरी अर्बन स्पेसेस है हमारी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं रूरल से कनेक्टेड है. तो हमें उन चीजों को भी समझना होगा कि बेसिकली रूरल डेवलपमेंट है क्या. बेसिकली जो हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि दिस इज रूरल डेवलपमेंट, बट है क्या बेसिकली. क्या हम रूरल वेलफेयर शब्द यूज करें या रूरल डेवलपमेंट शब्द यूज करें, वो भी स्पीकर आज आपको क्लियर करेंगे उस चीज के बारे में. इसके साथ साथ मैं आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड as well as our Department of Sociology expresses gratitude to our esteemed principal for giving us permission to organize this particular webinar on this particular topic. अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के जो HOD है डॉक्टर अरुण कुमार, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये कुछ शब्द बोले डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में
और साथ में जो हमारे विमर्श इनिशिएटिव है, because we have taken so many initiative under Department of Sociology, that is विमर्श, that is Sociological Imagination Forum. So इनके बारे में हमारे स्पीकर को बताएं कि हम किस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं विमर्श के अंदर और साथ में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन फॉर्म के अंदर. आई रिक्वेस्ट यू सर, please say a few words about Vimarsh and Sociological Imagination Forum. Thank you. Thank you, Dr. Ravinder. Thank you for inviting me. Department of Sociology, Gidharilal Dogar Memorial Degree College, Hiranagar, extends heartiest welcome to our worthy chief guest, Dr. Pragya Khanna ma'am, and our keynote speaker, Professor Bhuta Singh, our colleagues from the department, from the college, and our dear participants. Welcome everyone in this chilly day. Department of Sociology has created a forum with the name Sociological Imagination Forum. Me and my colleague here, we have worked on this forum, Sociological Imagination Forum, and we are trying to ponder and discuss the debates of daily relevance. And under the initiative Vimerge, we organize some periodic lectures or exposure or extension lectures which are based on the curriculum of our students, and which is not something that they are getting something different. This is the part of very syllabus of our students, and we are giving them exposure and extension lectures, extension visits of our students in spite of other lectures which are of general relevance. These are the lectures which are based on their syllabus, which are in their syllabus. And today, to ponder on this important issue, important topic, we have with us Professor Bhuta Singh, and he will be talking on rural social structure and welfare in India. Professor Bhuta Singh, sir, welcome, sir, and thanks for joining in our program. Thanks a lot for joining us here. Professor Bhuta Singh is assistant professor in the Department of Rural Development, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. He is also program coordinator for Masters of Arts program in Rural Development. He is program coordinator for Gyan Darshan. He is program coordinator for School of Management Studies, Indira Gandhi National Open University, and also program coordinator for School of Journalism and New Media Studies, Indira Gandhi National Open University. In short, he is a person with educate qualification who would enlighten us on this important issue, this rural social structure and welfare in India. Friends, rural society is one of the defining feature of Indian society. We cannot just ignore this thing. This is the very basic element of our Indian society, and most sociologists have given credence to this category. Most of the studies and theoretical articulation, they're by and large based on Indian villages, apart from the two important categories, that is caste system and joint family. And considering it as an important entity, there has been a large number of studies starting from the colonial times, and after independence, a corpus of studies were conducted in 1950s in Indian village system, and many sociologists have used the metaphor of republic in the context of villages. And by this republic, they meant that villages were by and large self-sufficient in themselves. They have their own panchayat system, they have their own Jajbani system, and different kinds of linkages. But those systems, and earlier villages were the center of study, center of research. But that system was later broken in the colonial times, and we could not kind of re-establish that link, that system again, and that self-sufficiency which was there in the village system, that got broken later. That exchange system in the form of Jajmani, it was also broken by and large, and the connection with outside world was increased. So there's something that is going on in the villages, and the connection is very evident with the urban centers, and anything which happens in urban centers is getting transformed to the rural society. So this interconnectedness has grown tremendously, and it has grown enormously. To have an enlarged discussion and a full-scale debate, we have our expert speaker today. We won't be discussing too much. He is an expert in rural development, rural studies, and we are grateful that you have joined us here, sir, in Jammu, in this part of Jammu and Kashmir. Thank you, sir. Thank you for joining. I request you and welcome you again, sir, to continue your lecture today. Thank you, sir. Thank you, Professor Bhuta Singh.
जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी जी सर, बिल्कुल। यस सर। जी जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आपके कॉलेज की प्राचार्य महोदय प्रोफेसर खन्ना जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और अरुण जी का और रविंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आज जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जो आज का हमारा विषय है वो बहुत ही सरल है, और मेरी एक रुचि भी रहती है कि चीज़ों को ना बहुत सरल तरीके से पेश किया जाए, है ना। बहुत मतलब कई बार हमारे यहाँ पे क्या है कि एक परंपरा बनी हुई है कि विद्वान उसको माना जाता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, है ना, लच्छेदार बातें, बड़े बड़े कोटेशंस डेफिनेशंस दे, भारी भरकम अंग्रेजी बोले, ठीक है, भारी भरकम भाषा यूज करे। लेकिन मैं उस परंपरा का नहीं हूँ। मैं बहुत सरल तरीके से सरल बात करता हूँ, सहज तरीके से बात अपनी कहता हूँ। और दूसरी, मैं बहुत ज्यादा अवधारणाओं में, थ्योरियों में भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के साथ एक डायलॉग करना चाहिए ना। जैसे मोस्टली टाइम क्या होता है कि लोग लेक्चर देने में लग जाते हैं, और लेक्चर के चक्कर में क्या होता है कि वो वन डायमेंशनल हो जाता है, एक पक्षी हो जाता है। जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंचती नहीं है, और पहुंचती भी है तो 10-20% विद्यार्थी तक पहुंचती है। तो मेरा तरीका थोड़ा सा लगा आपको, थोड़ा सा अलग लगेगा। मैं इंटरेक्टिव और डायलॉजिकल वे में बात करता हूँ। और आप विद्यार्थियों से भी सबसे कहूंगा कि भी आप सब भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। अगर कोई बात मैं पूछूं तो आप भी इंटरेक्शन करें, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आज का विषय है भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना, और मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया है, कल्याण। भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो हम भारतीय ग्रामीण संरचना क्या है, जैसे अरुण जी ने बताया कि इसका एक, हम ये कह सकते हैं, रिसर्च और स्टडी किस प्रकार से हुई है, किस तरीके से भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना को देखा गया है ना। एक लघु गणतंत्र के रूप में देखा गया है, एक सामाजिक संरचना की एक शुरुआती इकाई के रूप में देखा गया है, जिसका उसकी अंदर भी एक इकाई है जिसको हम परिवार कहते हैं, और उसके अंदर विभिन्न विभिन्न कंटेक्स्ट में इसको स्टडी किया गया है। बहुत से विद्वानों ने, जैसे आर देसाई, वर्तमान में आप सुरेंद्र सिंह जोधका जी को देखेंगे, उन्होंने एग्रेरियन स्ट्रक्चर पे काम किया है, ग्रामीण संरचना के ऊपर बात की है। और आंद्रे बेते जी हैं, और एसी दुबे जी हैं, और बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने, और विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने विलेज इन इंडिया पे बात की है एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपसे जो बात करने आया हूँ, मैंने रविंद्र जी से बात करते हुए कह दिया था कि मैं बच्चों से एक इंटरेक्टिव सेशन में बात करूंगा। आज मैं किताबों में लिखे हुए गांव की बात नहीं करूंगा, आज थियरीज में लिखे हुए गांव की बात नहीं करूंगा, आज किसने क्या देखा है उसकी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आज आया हूं आपके गांव की बात करने के लिए। आपने गांव को कैसे देखा है आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबकी और हम सबकी कहीं ना कहीं एक जो पृष्ठभूमि है या बैकग्राउंड है गांव से जुड़ा हुआ है। भले ही हम डायरेक्टली नहीं जुड़े हो, हमारी नानी गांव से हो सकती है, हमारी दादी गांव से हो सकती है, हमारा कोई रिश्तेदार गांव से हो सकता है, कभी ना कभी हमें गांव में जाने का अवसर भी मिला हो। तो आपने, जब आप गए होंगे या दूसरे तरीके से आपके ने किसी के मुख से सुना भी होगा, या आजकल देखते हैं कि इतना हमारे पास मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया के दौर से हम गुजर रहे हैं कि हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हम बिना जाए भी हम उसको लाइव देख सकते हैं। जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी माध्यम से, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका, तो हम क्या पाते हैं कि जो ग्रामीण संरचना है, जो भारतीय ग्रामीण संरचना है, उसमें क्या है। आप देखते हैं कि बहुत सरल तरीके का समाज देखने को मिलता है। सामाजिक दृष्टि देखें तो वहां की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत सरल है, डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन से पहचान सकते हैं कि क्या चीजें हैं। आप सीधा देखते ही समझ सकते हैं कि क्या बात है वहां पे। जैसे वहां की चाहे आर्थिकी को देखें तो ज्यादातर परंपरागत विद्वानों ने कहा है कि वहां की जो गांव की आर्थिकी है, वो अर्थव्यवस्था जिसको कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है, कृषि के ऊपर ही आधारित होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कृषि से जुड़े हुए और भी कार्यों से वहां की अर्थव्यवस्था चलती है। इसके अलावा अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। अगर आप जाएंगे
उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ, नॉर्थ ईस्ट राज्य के गांव की तरफ जाएंगे तो वहां देखेंगे कि कृषि भी है, लेकिन जैसे वहां का अपना एक स्ट्रक्चर है, वहां का अपना एक आर्थिक व्यवस्था है ना, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर, उसको जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे मैदानी इलाकों के जो गांव हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, तो वहां से थोड़ा सा आपको भिन्न मिलेगी अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, आर्थिकी या अर्थव्यवस्था देखें। इसी तरीके से जो सामाजिकी है वहां की, उसमें कहीं ना कहीं आप एक देख सकते हो कि सरलता, सहजता और समरूपता की बात आप सब जगह देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का गांव हो, चाहे वो वेस्टर्न स्टेट्स का गांव हो, चाहे वो हमारे नॉर्थ साइड के गांव हो, चाहे वो अगर राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर का गांव हो, उत्तराखंड का गांव हो, हिमाचल का गांव हो, राजस्थान का गांव हो, सभी गांवों में आप देखोगे कि एक कहीं ना कहीं एक समरूपता, एक जैसी कुछ बातें देखने को मिलेगी। भले ही भाषा अलग हो, जैसे जम्मू कश्मीर में आपके डोगरी बोलते होंगे, उर्दू बोलते होंगे या और कोई स्थानीय भाषाएं बोलते होंगे, लेकिन आप देखोगे कुछ एक समरूपता है। जैसे आप देखोगे कि वहां के लोगों में जो रिश्ते हैं, रिश्तों की बात करो, परिवार व्यवस्था की बात करो, तो आप देखोगे कि बहुत से प्राथमिक स्तर के रिश्ते, प्राइमरी रिलेशंस की बात हम कर सकते हैं, प्राथमिक स्तर के रिश्ते होंगे, अनौपचारिक स्तर के रिश्ते होंगे। और हम एक हमारे समाजशास्त्र में एक विद्वान हुए हैं जिनको आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, एमाइल दुर्खाइम, हिंदी में हम कह सकते हैं दुर्खिम जी, जिन्होंने बात की है सुदृढ़ता या एकता की बात की, जिसको हम सोलिडेरिटी की बात कर सकते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण समाज होता है या वो बहुत सिंपल सोसाइटी होती है, वहां पे जो सोलिडेरिटी होती है, जो एकता होती है, वो मैकेनिकल सोलिडेरिटी होती है। हम इसको कह सकते हैं यांत्रिक सुदृढ़ता या यांत्रिक एकता। उसमें एक समरूपता दिखाएगा, एक जैसा भाव दिखेगा, एक जैसे आपको जो रिश्ते नाते हैं उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेगी। हम कहेंगे कि सरल तरीके के चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे सरलता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप देख सकते हो। अब इसके बाद में बात हम करते हैं, जो गांव की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है परिवार व्यवस्था। उसमें भी आप देखते हो, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पुराने समय में जाए तो आप देखते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था जो पूरे विश्व को दे, आज के दौर में जो हम बात करते हैं G20 में जो हमारा भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसमें एक विचार आया है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार। ये विचार भी कहीं ना कहीं अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें, माइक्रो लेवल पे जाके देखें, तो आपको जान पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ग्रामीण सामाजिक संरचना से निकल कर आया है। गांव में आप देखते हो, चाहे भले भी कोई भी परिवार किसी भी जाति का हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन गांव में पूरा गांव एक परिवार की तरीके से काम करता है। भले उनके रसोई अलग होगी, खाना अलग बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो संपर्क है, सामाजिक व्यवहार है, आचार है, संस्कार है, परंपराएं, और हम ये कह सकते हैं कि जो सेलिब्रेशन है वो साथ में होता है, एकत्व के साथ होता है। तो वहां से निकल के आया है जो आज ये विचार हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी संस्कृति का भी एक अभिन्न हिस्सा है, हमारी राष्ट्र चित्ती का एक, हम ये कह सकते हैं कि ध्येय वाक्य है। तो वो ग्रामीण संस्कृति से निकल के आया है। हम ये कह सकते हैं कि जो परिवार व्यवस्था है वो ग्रामीण समाज की, और हम ये कह सकते हैं रूरल सोशल स्ट्रक्चर की देन है। और रूरल सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा, रूरल सोशल स्ट्रक्चर में आप ये देखते हैं, ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप ये देखते हैं कि परिवार व्यवस्था इसकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में आप रिश्तों को देखते हैं, परिवार में नातेदारी जिसको आप किनशिप कहते हैं वो देखते हैं, परिवार में ही आप व्यवहार को देखते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल व्यवहार हो, चाहे वो कलेक्टिव व्यवहार हो, है ना, चाहे वो सामूहिक व्यवहार हो, चाहे वो व्यक्तिगत व्यवहार हो। परिवार से ही आप प्रतिमान की बात कर सकते हैं, परिवार से ही आप मूल्यों की बात कर सकते हैं। इसको सूक्ष्म दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, इसको जब आप वृहद दृष्टि या मैक्रो लेवल पे अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें समाज की बात भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के समाज, राज्य, देश, और हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड, पूरा विश्व की बात कर सकते हैं। लेकिन मूल जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था से निकल के आता है, ग्रामीण सामाजिक संरचना से निकल के आता है। तो जो पारिवारिक, हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था की देन है, वो कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण सामाजिक संरचना की देन है। और आज भी आप देखोगे ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो परिवार व्यवस्था है बहुत ही सुदृढ़ है।
जैसे मैं अभी बता रहा था कि मूल्य, प्रतिमान और संस्कार, ये सब परिवार व्यवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। परिवार व्यवस्था के द्वारा ही इनका संचालन होता है। और जो परंपराएं हैं, आधुनिकता के साथ परंपरा को साथ लेके चलना, अच्छी परंपराओं का हम साथ लेके चलते हैं, चाहे वो त्योहारों के रूप में हो, चाहे हमारे कोई स्पेसिफिक परिवार की कोई परंपरा हो। जैसे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशंस, लघु और वृहत परंपराएं। तो वो सब भी हमारे ग्रामीण समाज में देखने को मिलती है, और ग्रामीण सामाजिक संरचना में कहीं न कहीं उनका एक हम ये कह सकते हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना की ही वो देना है, और ग्रामीण सामाजिक संरचना ही उसकी शुरुआती इकाई है। उसके बाद में अगर बात करें व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की, तो उसमें भी जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, उसमें आप देखते हो कि एक आत्मनिर्भरता का भाव आप देखते हो कि जो आज पूरे ब्रह्मांड में बात चल रही है और पहले भी चलती रही है, और ध्येय वाक्य के रूप में भी राष्ट्रों ने अपनाया कि जो आत्मनिर्भरता का भाव है वो सब जगह होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो कि गाँव में तो सर ने पहले बता दिया कि लिटिल रिपब्लिक या गणतंत्र की बात, या अपने आप में स्वतः स्फूर्त, या अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि किसी के ऊपर आश्रित न हो, इस तरीके की व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक संरचना में देखने को मिलती है, जिसका सीधा भाव आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। गांव में आप देखते हो कि गांव के जो लोग हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आत्मनिर्भर माने जाते हैं, भले ही उनके पास जो आधुनिक समय में हम जो देखते हैं, जो तथाकथित रूप से जिनको हम विकसित सुविधाएं मानते हैं वो न हो, लेकिन वो अपनी जो हम ये कह सकते हैं जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकताएं उनके लिए वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए हुए हैं। उनके हम ये कह सकते हैं उनके लिए उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान हो, चाहे वो उनकी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की कोई भी चीजें हो, वो उसमें आत्मनिर्भर है। तो जो आत्मनिर्भरता का भाव है वो ग्रामीण सामाजिक संरचना में है। केवल मात्र वो एक व्यवस्था में नहीं है कि हम ये कहें कि सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, नहीं, वो सामाजिक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता का भाव है। आप देखते हैं कि जो कुटुंब का विचार है वो एक अपने आप में आत्मनिर्भरता का बोध कराता है, और आत्मनिर्भरता केवल मात्र एक शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक दर्शन है, अपने आप में एक, मुझे लगता है कि जीवन को चलाने वाला एक निर्देशिका है। तो वो सब भी आपको ग्रामीण सामाजिक जीवन में देखने को मिलेगी और ग्रामीण सामाजिक संरचना में देखने को मिलेगी। आप चाहिए मैं आप सबसे विद्यार्थियों से और सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप सब किताबों में, हम पुस्तकालय में और चेयर पे बैठ के और कमरों के अंदर बंद होके किताबों में गाँव को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, देख भी लेते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में और लाइव भी, अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि आप सब गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, चाहे वो आपके किसी भी कंटेक्स्ट में आता हो, और वहां 5 दिन रह के देखिए। 5 दिन उस गांव में रहिए, उस गांव के लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, और उसको जो भी आप इंटरेक्ट करते समय अनुभव कर रहे हैं उसमें कोई आपको अपनी टिक्का टिप्पणी नहीं जोड़नी है, उसको एज इट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा जैसे आप जो भी अनुभव करें एज इट इज लिखिए और उसको लेके आइए, और उसके बारे में फिर विचार कीजिए कि जो आपने किताबों में, लाइब्रेरीज में बैठ के ग्रंथों में पढ़ा है, या लोगों ने जो नरेट किया है, गांव क्या है, ग्रामीण सामाजिक संरचना क्या है, तो आप कहीं ना कहीं एक उसमें भी लेटेस्ट वर्जन आप लेके आएंगे। मैं अपने विद्यार्थियों से और अपने साथियों से हमेशा कहता हूं कि जो ज्ञान परंपरा है, और हमारी विशेषकर भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें एक बहुत बड़ी बात रही है कि वो हमेशा विश्वास करता है कि जो चीज हम आत्म साक्षात की बात है, जो चीज हम देखते हैं, जाके देखते हैं, जैसे हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमें एथनोग्राफिक स्टडीज की बात बताते हैं ना, नरजातीय शास्त्र जो है वो बताता है कि जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसके ऊपर स्टडी कीजिए, मैनिपुलेट मत करिए उसको, जैसा है वैसे एज इट इज लिखिए और उसके बारे में आप एनालाइज कीजिए।
क्योंकि मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के जागरूक विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते हम सबको जो समाज का यथार्थ है उसको लाना बहुत जरूरी है। और उसको लाने के लिए समाज की जो व्यवस्था है, चाहे वो सामाजिक संरचना हो, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था हो, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें जाके देखना पड़ेगा। और आज आप देख रहे हो कि पिछले 50-60 सालों में परिवर्तन जो है, और जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, उसमें आप देखते हो बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। बहुत, हम ये कह सकते हैं कि जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें बहुत गति है। तो इसको आप देखते हो कि जो 10 साल पहले जो ट्रेंड चल रहा था, 10 साल पहले जो समाज में बातें चल रही थी, वो आज आपको देखने को पता, आप जाएंगे गांव में भी जाके देखेंगे तो आपको लगेगा यार गांव जो हम सोचते थे किताबों में या लोगों ने बताया, नरेट किया, वैसा नहीं है। जैसे मैं राजस्थान के गांव से आता हूँ, 10 साल पहले मैंने मेरे गांव को जो ऑब्जर्व किया, देखा, लोगों के व्यवहार को देखा, आज जब मैं जाता हूँ देखता हूँ तो अलग है। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये जो भूमंडलीकरण का दौर है, इसमें जो तकनीक है, एक शब्द हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, वो गांव में भी पहुंच चुकी है। आज आप देखते हो कि गांव की बूढ़ी दादी, ठीक है, भले ही उसको अंग्रेजी नहीं आती हो, लेकिन व्हाट्सएप पे आपके साथ वीडियो कॉल कर सकती है, बात कर सकती है। भले ही आपको वो क्या कहें कि अंग्रेजी में रिप्लाई नहीं कर पाए, उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन आप देखोगे कि वो एक उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरीके से किसी भी सुदूरवर्ती आप जनजातीय क्षेत्र में जाइए, रिमोट ट्राइबल एरियाज में जाके देख लीजिए, वहां भी चीजें पहुंच रही हैं, टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। और हम ये कह सकते हैं कि जो मूल विचार है हमारा ग्रामीण सामाजिक संरचना, तो वो केवल एकमात्र ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आधार पे उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि उसको हमें तकनीक से भी जोड़ के देखना पड़ेगा। आज हम देखते हैं, सिंपल बहुत पढ़ा है हमने कि गांव सरल होते हैं, उसमें प्राथमिक तरह के रिश्ते होते हैं, जटिलताएं नहीं होती, परिवार व्यवस्था सुदृढ़ होती है, लोगों के आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं, प्रत्यक्ष तरीके के होते हैं, और जाति व्यवस्था होती है, जाति कुटुंब का विचार होता है, और आप देखते हैं कि सरल तरीके के लोग होते हैं, कृषि आधारित बात होती है। लेकिन आप गांव को एक दूसरे तरीके से देखिए, एफ्लुएंट विलेज की बात करिए, समृद्ध गांव की बात करिए, आप वहां पे गांव में तकनीक को देखिए, आप देखेंगे कि ठीक है, सामान्य दृष्टि से तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि गांव, लेकिन कई गांव मैंने ऐसे भी देखे जो शहरों को भी फेल करते हैं। जो चीजें शहरों में, जिस तरीके का ट्रेंड आपको शहरों में नहीं मिलेगा, वैसे गांव में भी देखने को मिल जाए। एक बार मैं बेंगलोर के पास एक गांव में गया, हालांकि वो शहर के नजदीक था, फ्रिंज विलेज ही था, लेकिन देखा कि वहां सारी सुविधाएं, सारे मतलब गांव वाली बात ही नहीं लग रही थी। लेकिन हाँ, गांव, क्योंकि वो गांव की जो हम एक व्यवस्था मानते हैं ना कि कम जनसंख्या, और हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेन स्ट्रीम जो बसावट है उससे दूर है, तो वो चीजें थी उसमें। अब इसमें एक बात और आती है कि जो सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम बात कर सकते हैं व्यक्ति, ठीक है, और समाज। हम ये कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी और सोसाइटी, और उसके बाद में एक बात कर सकते हैं कल्चर की। तो ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो कल्चर, पर्सनैलिटी और सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, संस्कृति, व्यक्तित्व और समाज की जब बात करते हैं, तो आप देखते हो कि ग्रामीण जो संस्कृति है उसमें मौलिकता है, सृजनात्मकता है, प्रत्यक्षता है, और हम ये कह सकते हैं सहजता है, सरलता है। और हम ये एक नई शब्द हम अगर यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप नहीं है ग्रामीण संस्कृति में। ग्रामीण संस्कृति में आप देखोगे किसी भी प्रकार, किसी भी एस्पेक्ट को उठा के देख लीजिए, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि जीवन को जीने के जितने भी रस हैं, भाव हैं, वो सब ग्रामीण संस्कृति में आपको देखने को मिलेंगे। और व्यक्तित्व की बात है, क्योंकि जो संस्कृति जीने का ढंग, वे ऑफ लिविंग या तरीका, उससे जुड़ा हुआ है व्यक्तित्व भी। तो उसी से आप ग्रामीण जो व्यक्तित्व है, ग्रामीण जो व्यक्ति है, लोग हैं, आप देखोगे सरल तरीके के मिलेंगे आपको, जटिल नहीं मिलेंगे, जो मैं पहले बता सकूं। सहजता होगी, सिंपल होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, डायरेक्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। ठीक, आप कभी कम मिलिए कि शहर के 10 लोगों से बात करके देखिए और गांव के 10 लोगों से बात करके देखिए, आप खुद अंतर महसूस करेंगे। और समाज की बात है, समाज में भी आप देखेंगे कि वी फील सेंटिमेंट आपको ग्रामीण समाज में देखने को मिलेगा। हम की भावना, जिसको हम कह सकते हैं सामुदायिक भावना, देखने को मिलेगी, एकत्व का भाव। और एक और विचार जो आप सबने सुना भी होगा और
मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं रिमाइंड करा रहा हूँ जी। गांव में आप देखते हो कि गांव का जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, गांव का सबसे जो कमजोर परिवार है, उसको भी पूरे गांव के लोग किसी भी हर प्रकार के अवसर में सहयोग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं गांव में क्या है कि एक तरीके से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, या पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ सहयोग और उसको साथ लेकर चलने की भावना भी ग्रामीण सामाजिक संरचना में है। मैंने जो शब्द यूज किया था कल्याण, वो इसलिए यूज किया था, विकास शब्द आधुनिक है और ऐसा नहीं कि विकास शब्द जरूरी नहीं है, समाज के लिए बहुत जरूरी है और विकास से ही सब कुछ संभव है, लेकिन विकास की कुछ सीमाएं हैं। लेकिन जहां शब्द आता है कल्याण, कल्याण हमारी भारतीय संस्कृति और विशेषकर ग्रामीण भारतीय संस्कृति और ग्रामीण भारतीय संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको अंग्रेजी में हम वेलफेयर कहते हैं। आपने एक संस्कृत में कल्याण मंत्र भी सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसमें कल्याण की भावना छुपी हुई है। जब हम पढ़ाते हैं, जब हम इंटरेक्शन करते हैं अपने लर्नर्स से और हमारे अलग अलग प्रकार के साथियों से, तो हम ये बात कहते हैं कि सिर्फ विकास 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 से काम नहीं चलेगा, उसमें कल्याण की भावना होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, विकास है, मैं अपना विकास, ठीक है, इंडिविजुअल मैं अपना विकास करने के लिए काम करूंगा, हो सकता है मेरा परिवार पीछे छूट जाए, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद आ जाएगा। लेकिन जब कल्याण की भावना होगी कि मेरा तो विकास हो, मेरे समाज का विकास हो, मेरे गांव का विकास हो, लेकिन साथ साथ सबका विकास हो, एक विचार जो शायद चल रहा है अभी, सबका साथ सबका विकास, तो उसमें भी कल्याण की भावना। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें कल्याण का भाव निहित है, ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें प्राकृतिक रूप से कल्याण का भाव निहित है। और मैं अक्सर अपने साथियों से और दोस्तों से शेयर करता हूं कि जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है वो प्रकृति के सबसे नजदीक है। इसलिए नहीं कि सिर्फ वहां पे नदी नाले हैं, पहाड़ है, टीले हैं, पानी शुद्ध है, हवा शुद्ध है, इसलिए नहीं, बल्कि उसमें कल्याण की भावना है और प्रकृति होती है, उसमें कल्याण की भावना भी होती है और नाश का भय भी होता है। और जैसे आपने सुना होगा, नाश के भय से रुकता नहीं निर्माण का सुख, तो उसमें निर्माण भी होता है, लेकिन उसमें अल्टीमेटली या कहें अंततः जो भाव होता है वो कल्याण का होता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप कहीं भी देखते हैं रिश्ते, नाते, मूल्य, संस्कार, व्यवहार, आचार, उसमें आप देखोगे कि व्यक्ति खुद को न करके बल्कि हम, वी, अहम के बजाय हमको रखता है, व्यक्तिवाद नहीं है उसमें, साथ लेके चलता है। तो वो कल्याण की भावना के कारण से प्रेरित है, उसे भी नहीं पता है। जैसे आप गांव में जाओगे, आप देखोगे कि परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आपकी सेवा के लिए वहां पे खड़ा है। शहरों में आप जाओगे, बॉस है तो वो खड़ा नहीं होगा, या आप देखते हो कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े बड़े में, अहम की बात है ना, खड़ा नहीं होगा, प्रोटोकॉल्स हैं, ये है वो है। लेकिन ग्रामीण संस्कृति में आप देखोगे कि एक गांव का, कुटुंब का जो सबसे बड़ा मुखिया, बड़ा व्यक्ति है, वो आपके सत्कार के लिए और उसके लिए खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा हो गया, कमजोर हो गया, कल्याण की भावना उसमें विराटत्व है, उसमें मानव को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का एक तत्व निहित है जो हो सकता है उसे नहीं पता हो, तो वो विचार भी इसमें देखने को मिलता है। अब कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा ना दार्शनिक तरीके से बात किया, प्रैक्टिकल दृष्टि से अगर देखें, आप देखो गांव में जाइए, आप सब जब गांव में जाते हो, जैसे कभी आप सब अपने ननियाल गए होंगे, ननियाल किसी का गांव होगा, या दादाजी गांव में रहते होंगे, आप जब जाओगे वहां तो आपने महसूस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहां ये नहीं है कि एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि भाई आपको ही दे दिया, आपके कजन ब्रदर को या कजन सिस्टर को नहीं दिया, ऐसा नहीं हो, सबको देंगे, क्योंकि उनके व्यवहार में ऐसा है, सबके कल्याण की सोचते हैं। तो मैं भी अक्सर ये कहता हूं कि जो रूरल डेवलपमेंट का विचार है अच्छा है, लेकिन रूरल वेलफेयर की बात करनी होगी। ये प्रोग्राम्स, ये जो ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो ठेकेदारी चल रही है, इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं इसको ठेकेदारी टाइप से समझता हूँ कि ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। एक मानसिकता विकसित करनी होगी हमें, वेलफेयर का विचार विकसित करना होगा, और विद्यार्थियों में और जो लर्नर्स हैं उसमें एक हमें कल्याण
के विचार के साथ उनको जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनमें ट्रेनिंग देनी होगी, तब जाकर हम उसमें कहीं ना कहीं विकास की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। और मैं जैसे अभी इन दिनों विंटर वेकेशंस पे हूँ, तो उत्तराखंड के अंदर हूँ, और मैं भी एक जो यूनिवर्सिटी है वहाँ गांव में ही है वो एक, तो मैं गांव में घूमता रहता हूँ, उत्तराखंड के गांव में। मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। नज़दीकी गांव है, तो मैंने 4-5 विलेजेस में मैंने विजिट किया अभी पिछले 15-20 दिन में। मैंने महसूस किया कि जैसे कुछ गांव एक ही जाति से जुड़े हुए हैं, एक परिवार से ही जुड़े हुए हैं, और कुछ गांव में अलग अलग जाति और परिवार हैं। मैंने महसूस किया कि उन सभी गांव में कोई भेदभाव नहीं है, भले एक परिवार के हों चाहे अलग अलग हों, सब में एक दूसरे के प्रति स्नेह है, एक दूसरे के प्रति आदर है, एक दूसरे के प्रति एक, हम ये कह सकते हैं कि बहुत रिश्ते जो है बहुत ही उज्जवल किस्म के हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें पिछले 2-3 साल, जैसे कोरोना का जो समय गुजरा है, कितना बुरा गुजरा है, आप सबने देखा होगा। पहाड़ों में, गाँव में गया तो गाँव के लोगों ने मुझे बताया कि 40% लोग ऐसे हैं जो शहरों से अब वापिस आ गए हैं गाँव में काम करने लगे, गाँव में रहने लगे। और उनके एक्सपीरियंसेस जब मैं सुनता हूँ, उनसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं आपसे भी शेयर करूँ। वो कहते हैं कि असली जो जीवन है वो केवल चकाचौंध में नहीं है, मर्सिडीज में बैठने से नहीं है, हेलीकॉप्टर में चलने में नहीं है, एप्पल का मोबाइल या बहुत हाई फाई चीजें करने में नहीं है। वो इंसान को इंसान समझने में है, एक व्यक्ति की भावनाओं को समझने में है। तो वो महसूस किया, उन्होंने देखा, और आज वो बता रहे हैं कि हमारा जो ये जीवन है, प्राकृतिक रूप से बहुत वो अपने आप को सुदृढ़ समझ रहे हैं, मेंटली बहुत, हम कह सकते हैं मेंटली बहुत सुदृढ़ समझ रहे हैं। जो एकांकी भाव, जो बहुत तेज चलती जिंदगी में एकांकी भाव आ गया था उनके में, वो आज अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं, स्थिरता उनके जीवन में। तो मैं एक और, क्योंकि मैं अभी गांव में हूं तो इलेक्ट्रिसिटी शायद चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहेगा अपना। हाँ, एक कुछ लाइनें हैं, मैं बोलना भी चाहूंगा आपके सामने। सर अगर अभी एक इंटरेक्टिव सेशन करें तो बेटर रहेगा एकदम बच्चों के मैं साथ। बस 2-4 लाइनें आपको बोल के फिर बच्चों को। ठीक है सर, ठीक। शहर घूमता है काले चश्मे लगाकर, शहर घूमता है काले चश्मे लगाकर, गांव अब भी नजर मिला लेता है, शहर बीमार होता है दवाओं से, शहर बीमार होता है दवाओं से, गांव बीमारी में भी खुद को झिला लेता है, शहर के घर से लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, शहर के घर से लोग खाली हाथ लौट जाते हैं, गांव के लोग बर्तन भी खाली नहीं लौटाते हैं। गांव में देखा होगा कि किसी को बर्तन दे दिया तो उसमें कुछ डाल के वापस देंगे। तो ये हमारी ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण समाज की विशेषता है। और मैं एक बात और कहूंगा कि जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें, उसके लिए चंद दिनों की बात है, हो रहा चारों ओर उजाला, थोड़ी सी अब रात है। मेरा गांव बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, और मुझे लगता है कि गांव के कल्याण के साथ ही देश का कल्याण संभव है। और अब मैं विद्यार्थियों से और हमारे जो भी इंटरेक्शन करने वाले हैं उनके साथ सर द्विपक्षीय हो। जी सर, आपने बहुत 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 बड़ी बड़ी बातें की जो बहुत मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट, अपने अनुभव शेयर किए, और मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा आपने आज एक न्यू टर्मिनोलॉजी रूरल वेलफेयर जो आपने बताया, मुझे लगता है कि काफी एक इम्पोर्टेंट रेलिवेंट है, जिसको समझना चाहिए। और आपने पूरे गांव के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, और गांव के जो चेंजेस आ रही हैं और गांव किस प्रकार का है बेसिकली आपने डिफाइन किया। लेकिन आपने एक रूरल वेलफेयर को लेकर बात की। आपने बच्चों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोगों ने बहुत सारी चीज सुनी होंगी अभी वेबिनार में। आप लोगों के जो भी प्रश्न है तो आप उसको अपनी माइक ऑन कर लेना और पूछ लेना। क्लियर? अच्छा, तो मैं एक बात और कहूंगा विद्यार्थियों से। जी। अक्सर हम एक बात टीचर होने के नाते एक्सपेक्ट करते हैं विद्यार्थियों से कि प्रश्न ही पूछे। प्रश्न तो पूछना अच्छी बात है ही है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कुछ नया ऑब्जर्व किया हो। क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी होती है, नई जनरेशन में होती है, दे आर द लेटेस्ट ऑब्जर्वर।
और उनके पास जो सोसाइटी में चल रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन होता है, तो वो शेयर भी करें। प्लीज शेयर योर व्यूज, योर अंडरस्टैंडिंग, योर सर ऑब्जर्वेशन। सर आपको बता दूं, इसमें 99% जो विद्यार्थी हैं गाँव से आ रहे हैं, तो डायरेक्ट गाँव से आ रहे हैं। कुछ तो महत्वपूर्ण मतलब बातें काफी जो अच्छा आपको होगा। लगता है कि शेयर करनी चाहिए तो करिए शेयर। मुझे लगता है कि शेयरिंग नॉलेज इज लाइक क्रिएटिंग नॉलेज। लेट्स स्टार्ट है ना, स्टार्ट करें। जी ठीक है। Good afternoon, sir. Welcome. जी, गुड आफ्टरनून। बताइए। बस एक तो पहला क्वेश्चन ये था कि रूरल डेवलपमेंट में मिसिंग चीज़ क्या है, तो उसका आंसर तो आपने पहले ही बता दिया कि वो रूरल वेलफेयर होना चाहिए। तो एक जी। क्वेरी तो सॉल्व होगी। सर दूसरी हम बात कर रहे थे कि गांव में हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिलती है, और मैंने ये बहुत सारी जगह पढ़ा भी कि सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन है लेकिन गांव में मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। बट सर आई फील इट अदरवाइज, क्योंकि गांव में भी जो जैसे हम जजवानी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर है। तो आई फाइंड दिस कन्फ्लिक्टिंग कि ऐसा क्यों हमेशा कहते हैं कि गांव में मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। मेरी जो ऑब्जर्वेशन आई थिंक वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है। एकदम राइट, आई एम एग्री विद यू। ऐसा हम देखो, ऐसा होता है ना, जो टेक्स्ट है हमारा जो भी लिखा गया है वो ये नहीं कि हर कंटेक्स्ट में, कई बार कुछ कंटेक्स्ट में जाके देखेंगे और ऑब्जर्व। मैंने कहा, इसलिए मैंने बोला कि दुनिया के बहुत बड़े विद्वान ने कह दिया है, किताब में लिख दिया है, तो ठीक, अच्छी बात है, हमें मानना है। लेकिन क्या पता हम में से भी कोई आने वाले समय का बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। क्या पता आप ऐसी चीज ऑब्जर्व कर जाओ, एनालाइज कर दो कि वो दुनिया को गाइड करे। उस भाव के साथ हमें काम करना ना। एकदम मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कह देने से कि गांव में और समाज में, कई गांव ऐसे हैं आप जाके देखोगे जो फ्रेंड विलेजेस हैं गांव में, शहरों के मुहानों बसे गांव में, उनमें सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जो होता है ना कि आज तो सब चीजें पहुंच गई है, तो जिसको सुदूरवर्ती गांव है उसमें भी आपको ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी भी देखने को मिलती है। एकदम एग्री करता हूँ। सर एक और क्वेश्चन था। अभी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि पंचायती राज को ज़्यादा पावर्स दी जाएं और उस तरीके से। लेकिन सर मैंने जो अपने गांव में ऑब्जर्व किया और एक दो केस स्टडीज में, कि एक्चुअली उनको पावर्स देने से जो पावर्स उनको दी जा रही है उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको खुद को ही अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें हमारे पास क्या पावर्स हैं और कैसे उनको यूटिलाइज करना है। तो सर डोंट यू थिंक कि ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, ये थोड़ा सा ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से इम्प्लीमेंट अभी तक हो ही नहीं पाया 1992 से, जब से पंचायती राज सिस्टम आया है। नहीं देखो, ऐसा है, आपने अनुभव किया है इसमें और तो आप बता पा रहे हैं अपना ऑब्जर्व। जो हम, हो सकता है हमें अटपटा लगे, लेकिन जो नीति निर्माता है, जो काम करने वाले, उनका मानना है कि जो गणतंत्र है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से क्या है कि सत्ता नीचे तक पहुंचेगी। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो जिन लोगों को करनी चाहिए, उन लोगों को जागरूकता की जरूरत है। मैंने कहा ना कि उनके अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए। जैसे आपका गांव है, आप जागरूक हो, आप बात कर रहे हो, तो वहां के लोगों में भी जागरूकता है और वो उस पर काम करें तो और अच्छे से बेहतर होगा। और उसमें भी हमें रिफॉर्म की जरूरत है, एक अलग प्रकार से स्टडी करके और काम करने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहां के लोग जो है, मैंने कहा ठेकेदारी प्रथा से काम नहीं चलेगा कि ठेका लिए किसी ने सुधार करेंगे, नहीं। जो समाज वंचित है, उस समाज के लोगों में जब जागरूकता आ जाएगी तब विकास होगा, तब कल्याण होगा। उसके लिए काम करने की जरूरत है। जैसे आप अपने गांव में बात करिए, लोगों से बताइए, जागरूक करिए। एटलीस्ट स्टूडेंट है तो बात तो कर सकते हैं ना, बता सकते हैं। और हमेशा ये फीलिंग लेके चलो, ये मत सोचिए कि हम पढ़ेंगे, बीएड करेंगे, स्कूल में टीचर बनेंगे। क्या पता आप में से कोई जम्मू कश्मीर का ही कोई बच्ची मतलब ग्लोबल स्कॉलर हो जाए, सोशियोलॉजी की बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट। ये सोच के चलिए, इस विचार के साथ काम करिए, ये सोच के सर वन लास्ट क्वेरी। एक जो मैंने टर्म रिसेंटली पढ़ी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर हाउ डू यू व्यू इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल सोशल प्रॉब्लम्स?
ये सिर्फ एक सोशल फिनोमिना हम इसको कह के टाल दें, या डू यू थिंक कि एक सोशल प्रॉब्लम भी है रूरल सोसाइटी में? मैं थोड़ा ना चीजों को अलग दृष्टि से देखता हूँ। जैसे कि आइजेशन, इज्म, ये चीजें ना कई लोग बहुत सरल तरीके से कह देते हैं कंटेक्स्ट में। देखो मैं ना बहुत मेरी थोड़ी फिलोसफी लगे कि मैं बहुत सोचता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ बोलने की रखता हूँ। मैं ना बहुत ज्यादा लिखने में बहुत ज्यादा होता है ना, लोग की हर एक महीने में आर्टिकल लिख रहे हैं, एक महीने में किताब लिख रहे हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं सोचता हूँ कि समझना चाहिए पहले चीजों को, क्योंकि जैसे आपने बताया फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि है उसमें फेमिनाइजेशन की बात, नारी करण की जो बात है, ठीक है, उसमें ये एक पक्ष हो गया। किसी ने जिसने भी बताया एक पक्ष है, हाँ उसमें ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में नारी का ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। और अगर श्रम की बात करें, लेबर की बात करें, तो उसमें नारी 80% काम कर रही है, बहुत ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक पक्ष ही है, दोनों की बात करेंगे तो अलग दृष्टि निकल के आएगी ना। और इसमें हाँ ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समता, इक्विटी की बात, इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर होता है। तो इक्विटी की बात के आधार पे देखें तो सामाजिक समस्या के दायरे में आ सकती है, लेकिन सामाजिक समस्या एक अलग विषय आता है। हम बहुत सरल तरीके से किसी की चीज को समस्या कह देते हैं, कई बार वो मोमेंटरी होती है ना, क्षणिक होती है, या उस कंटेक्स्ट में लगता है, लेकिन वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई एक केस हो सकता है, जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं ना, केस स्टडी हो सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो केस पूरा जनरलाइज कर दें, तो वो है। लेकिन हमें दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए करना होगा ना। अक्सर अभी बहुत ना हमारे जो विद्वान लोग हैं, क्योंकि हमारी तो बहुत आने वाले समय में बहुत लगता है कि होंगी चीजें, फाइट ही होगी मतलब आने वाले समय, क्योंकि लोगों को है ना एक सिस्टम बना हुआ है, एक परंपरा बनी हुई है, बस कह दिया लोगों ने और हो गया, लच्छेदार बातें कर दी और हो गया। ऐसा नहीं है, उसको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपने जैसे ये शब्द यूज किया, आप अपने गांव में जाके देखना इस चीज को थोड़ा सा, एग्रीकल्चर में ये शब्द जो यूज किया है क्या है, किस आधार पे, फिर आप बताना रविंद्र जी को, हम सबको बताना, तो मुझे लगता है बेहतर। मैं तो एक चीज में बिलीव करता हूँ कि थोड़ा सा ना चीजों को ऑब्जर्व भी कीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो लैब है या प्रयोगशाला, वो तो समाज है हमारा। हम चीजें ऐसा नहीं कि हर चीज देख सकते हैं, हर चीज को महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जिनको देख सकते हैं, जो संभव, उनके ऊपर थोड़ा मुझे लगता है कि देखना चाहिए विद्यार्थी के नाते। तो नेक्स्ट स्विच ऑन कर लो कैमरे को, ऑन कर लो इसको, वीडियो को ऑन कर लो। अब पूछो ना, पूछो, कुछ नहीं तो पूछो, ठीक है। एनीवन हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस? कौन है? यू? कौन कौन पीछे कोई? एनीवन? नहीं? डॉक्टर साहब मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जो बात जी कौन कर रहे थे और सर कह रहे थे। जो सर ने ऑलरेडी बात करी, ये जो हम बात कर रहे हैं पंचायत की या फिर डेमोक्रेसी की, ये ऐसा नहीं कि ये कोई नया फिनोमिना है हमारे रूरल सोसाइटी में। पंचायत जो है वो बहुत टाइम से रही है, हजारों सालों से हमारे गांव के सेक्टर में जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है। पंच कन्वेंशन एकदम जो है वो एकदम। टाइम से है, ये जी कोई जी नई बात नहीं कि 1992 के बाद जो है सरकार ने इसको एकदम इंस्टीट्यूलाइज किया है। ये बहुत पुरानी बात है कि, और जो सर ने एक बात करी कल्याण की भावना, अगर अगर कोई इंसान अवेयर भी नहीं है चीजों के लिए वो अवेयर नहीं है, लेकिन उसमें भावना है कल्याण की, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास वो सब कुछ ज्ञान हो, जरूरी है कि आपकी इच्छा हो। क्योंकि अच्छे खासे अवेयर्ड इंसान और नॉलेज के इंसान जो है वो करप्ट और इल विल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। कल्याण की भावना जो एक सर ने बहुत एक बड़ी बात करी है, और डेवलपमेंट के साथ जो कल्याण की भावना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही जैसे बात फेमिनाइजेशन की, ये चीजें जो है हम कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं, बातें बहुत पुरानी है। जी जी फेमिनाइजेशन कोई आज की बात नहीं है। वुमेन का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में या सोसाइटी में वो हजारों सालों से ऐसे ही रहा है और पहले ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं कि ये कोई एकदम। नई बात है, ये बहुत पहले से है। हम उनके लिए एक उनका कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं, उनके लिए टर्म्स पेश कर रहे हैं। वही जो बात थी, जो एक टाइम पे उनके बीच में जो एक टाइम कॉलोनियल पीरियड रहा है, उसमें हमारा रूरल सोशल स्ट्रक्चर काफी चेंज हुआ है, और हमको नहीं पता कि उसके पहले क्या था। लेकिन जी उसके जी पहले का जो एक स्ट्रक्चर था वो काफी सेल्फ सफिशिएंट था, गांव का एक रिपब्लिक की तरह काम करता था। और लोग शहर में नहीं आते थे, अच्छे लोग जो थे, पढ़े लिखे लोग जो रिसर्चर थे, वो गांव की तरफ जाया करते थे।
वहां बैठ के रिसर्च करते थे। हमारे हमारे ऋषि, सीयर्स, सेजेस सब उन जगहों पे जाएंगे, क्योंकि आप भीड़ भाड़ में कोई भी रिसर्च, कोई भी नया कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो अर्बन सेंटर से बने ही है वहां पे है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री के अराउंड जो है पॉपुलेशन का सेटलमेंट हुआ। फिर अंग्रेजों के बाद जो है इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट पैदा हो गया कि अब शहर में रहना एक वो प्रगति की निशानी है, उच्चतर होने की निशानी है। पहले बड़े लोग गाँव में, जंगलों में भीड़ भाड़ से दूर रह के रिसर्च और वो सब किया करते थे। उन चीजों को कहीं फिर से रीइन्वेंट करके, है ना, रिडिस्कवर करके हम फिर से अगर थोड़ा सा उस पे देख सकते हैं, लुकिंग बैक कैन बी समथिंग, कि हम फिर से उनको थोड़ा खोजें, तलाश करें कि किस तरीके से वो इंसान, जी क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाह रहे हैं कि एक इंसान खुश रहे, या वो जो डेवलपमेंट है वो प्रगति है कि वो पर कैपिटा इनकम बहुत हो जाए लेकिन इंसान अपने आप में संतुष्ट भी ना हो। तो जी हमारे लिए गोल्स क्या हैं, टारगेट्स क्या हैं, वो भी हम सेट करें। डेवलपमेंट के साथ वेलफेयर, जो आपने बहुत बड़ी बात कही सर, वो उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू इस सुंदर से लेक्चर के लिए, इस एलोबरेट डिस्कशन के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी और तो डॉक्टर रविंदर सर। ठीक है। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जैसे हमारा जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ऋग्वेद, जी तो उसमें भी गांव को एक यूनिट माना गया है सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन एक माना गया उसको वेलफेयर के लिए। जी जी तो हमारे जितने भी प्राचीन टेक्स्ट हैं उन सब में मेंशनिंग है, चाहे पुराण को ले लो आप, चाहे जी उपनिषद ले लो आप। तो हम कहीं ना कहीं गांव की जो एक फिलोसफी रही है वो हम बहुत बैक टू डेट भी जा सकते हैं, सरस्वती सिविलाइजेशन से भी ट्रेस कर सकते हैं कि जी गांव की एक एक अलग इम्पोर्टेंस थी, उसके लिए था क्या। तो ये तो हो गया आज का रूरल सोशल स्ट्रक्चर वेलफेयर इंडिया। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया कि हम वेबिनार को एंड करें। तो अरुण अंत सर, में, आप थैंक्स अगर। हाँ, अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा सभी से, प्लीज सभी से, प्लीज। विद्यार्थियों से भी विशेषकर, आप जो भी पढ़ें उसको थोड़ा जीना भी सीखें, और जो जी रहे हैं उसको लिखना भी सीखिए, और जो अनुभव कर रहे हैं उसको भी लिखना सीखिए। जब ऐसा कर बिल्कुल पाओगे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप एंजॉय करोगे उसको। हम्म। ठीक है, पढ़ाई बर्डन नहीं होना चाहिए आपके लिए कि पढ़ रहे हो, आप उसको एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए उसको जियो, उसको सीखो कि चलो फेमिनाइजेशन पे बात करनी है या जेंडर पे बात करनी है तो उसको जाके देखिए, पहले समझिए क्या है, फिर उसको जाके समाज में देख लीजिए और लिख दीजिए। लिखने का अभ्यास बनाइए, गलत लिखिए, कैसा भी लिखिए, लिखते रहिए, क्योंकि आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ट्रायल एंड एरर, तो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, और बस यही कहूंगा कि लगे रहिए, बस लगे रहिए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको जियो। हम्म। जी जी जी। जो हम एक बेसिक सी चीज मानते हैं कि सरलता है, एक जो सिंपलिसिटी है जो गांव के एक स्ट्रक्चर में मिलती है, वही सरलता अगर इंसान के, हर एक इंसान के उसमें आए, और सरलता से बगैर किसी, जितने भी वो बाहर के उसमें बैरियर्स जी हैं, उनको हटा के वो सरलता के साथ चीजों को समझे, जिए, और उनमें इन्वॉल्व हो, ग्रास रूट चीजों के साथ इन्वॉल्व होकर उनको वैसे समझने की कोशिश करें, तो हम चीजों को बेहतर से समझ पाएंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे और उनको जी भी पाएंगे, जैसे आपने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक एक लास्ट बात सब विद्यार्थियों के लिए, हमेशा एक बात नोट करके रखो अपने जीवन में, इस जहां में तुम सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, इस विचार के साथ जियो। हमेशा ये याद रखो कि इस जहां में तुम सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर काम करो बस। बिल्कुल। इसकी और ये बहुत तो बड़ी, एक, जी जी बिल्कुल, इंडिविजुअल की बात करी आपने, और हर एक गांव जो है अपने आप में डिफरेंट है। बस और हम जब रूरल सोसाइटी की बात करते हैं तो वो जो स्पेसिफिसिटीज है, जो अलग अलग गाँव में होती है, हमें, हम जब जाते हैं तो उस यूनिकनेस की, हर एक गाँव की वो स्पेसिफिसिटीज को भी डिस्कवर करने की कोशिश करें कि इस गाँव का खास क्या है, इस गाँव में डिफरेंट क्या है। वो भी हम उस तरीके से, जैसे सर ने कहा, जब उनको लोग अपने आप को समझे कि हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं और अपने आप में सक्षम हैं, जी संपूर्ण हैं, और एक कोशिश के साथ कि हम आगे भी बढ़ें, वो जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर बूटा बूटा सिंह सर, आप आए हमारे इस आज के कार्यक्रम में, जिसमें आपने रूरल सोशल स्ट्रक्चर और वेलफेयर के बारे में एक विस्तृत रूप से हमें ज्ञान प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कॉलेज गिधारीलाल डोगरा मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर और डॉक्टर सोशोलॉजी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे कलीग, हमारे डियर फ्रेंड डॉक्टर रविंदर सिंह सर का। मैं स्टूडेंट्स को भी ये बात कह रहा हूँ कि ये जो हमारे कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो सच में इन्वॉल्व रहते हैं और
कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। डॉक्टर रविंदर ऐसे एक टीचर हैं जो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो पूरी तरह से चाहते हैं कि उनको किस तरीके से वो बेहतर चीजें उन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंदर सर, और सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का, हमारे कॉलेज के जितने भी कलीग्स हैं, हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू सर। जी थैंक यू थैंक यू सो मच है। थैंक यू